So, welcome to yet another problem solving session. This is a problem based on pulley block system, and this is obviously based on Newton's laws of motion. And we know that there are plenty of block systems involved in the application of Newton's laws of motion. And though I have a special dislike towards the pulley block system, but now I'm going to solve this example at least. This seems interesting. And the statement of the problem says that in the given pulley block system, for what values of m, small m? Yes, so it is here. One of the blocks remains stationary after the blocks are released from rest. The system is released from rest. Assume the pulleys and strings are massless and the strings are inextensible. All are well known and welcome situations. So thank you for guiding us that you are going to apply Newton's laws of motion straightforward. Consider all three possibilities. That means any of the blocks can remain at rest. Okay. So let's start decoding the problem. And what can we do first? So we are going to draw a free body diagram first in the first step. There are two strings involved in this problem. Let us assume that the tension in this string is T. So इन दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन हो जाएगा that will be T by 2. So T by 2 will act on capital M and 4M as well. And the rest we are going to show the force of gravity acting on respective blocks. And this is 4mg. No, this is not 4mg. This is rather mg. So I'm going to write this is mg and this is 4mg. Okay. And let's consider the first situation in which a small m is at rest. That means m is at rest. So what will be our first pick? क्या हम पहले सोच सकते हैं? So since ये block rest में है, so forces are going to be balanced. So first pick हमारा ये है कि tension in the string. This string इसमें टेंशन mg है और इस स्ट्रिंग में टेंशन t by 2 है. दैट मीन्स mg by 2 है. अब सोचना शुरू करते हैं. ये रेस्ट में होगा तो ये अगर रेस्ट में है तो ये पुली मूवेबल नहीं है. दिस पुली इज गोइंग टू बी एट रेस्ट. दिस पुली इज एट रेस्ट. दिस 2m and 4m आर नॉट गोइंग टू बी एट रेस्ट. ये दोनों रेस्ट में नहीं है क्योंकि इन दोनों पर फोर्सेस ऊपर की ओर T by 2 लगते हैं, सेम फोर्सेस. बट दोनों पर नीचे की ओर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है उसमें डिफरेंस 4 टाइम्स है. इस पर 4mg लगता है, इस पर mg लगता है. दैट मीन्स I can easily assume that this 4n will move downward with some acceleration, and so this small m can move upward with the same acceleration here because they are both tied with the same string. So it seems obvious. and यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं. इसका काम हो चुका. So this is accelerating upward. That means we can easily and safely write its equation of motion as T by 2 equals small mg. No, sorry, this is not at rest. This can be written as T by 2 minus mg equals ma. And so it gives mg by 2. I just put T equals small mg. mg by 2 minus capital MG equals MA. So I get here a small a equals G by 2 minus, leave it for now. Write down the Newton's second law of motion for this
4 m again. This is moving, this is accelerating downward, so we can write its equation as 4 mg minus t by 2 equals 4 ma, and t by 2 is again a small mg by 2, so I can write here 4 mg minus mg by 2 equals 4m multiplied by a. Next क्या करें? Next we can simply equate a from each of these equations. We can find a and equate them, because I don't need the value of a, I simply need the value of small a, so I can equate them. So if I can equate them, I can write something like mg by 2 minus mg divided by m, that will be equal to 4 mg minus mg upon 2 divided by 4m. और ये m मैं जो बोल रहा हूँ इसमें एक स्मॉल है, कैपिटल है, इनका काइंडली ध्यान रखेंगे. g दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, g, एंड यू कैन सॉल्व इट फॉर स्मॉल a, क्योंकि इस इक्वेशन में स्मॉल m कैपिटल M की मदद से निकाला जा सकता है. And you can get your values. What is our value? I just got it. This will be 16 by 5m. So the first situation is solved. And this is a way. मैंने जस्ट एक तरीका सुझाया है कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं. अब आप और भी तरीके से सोच सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है. मैंने बस एक कि मैं ऐसे सोचता हूँ शेयर किया आपसे. और अगर आप भी ये वीडियो में अगर मैं ये जो इरेज कर रहा हूँ ये आपको अनकम्फर्टेबल लगता है तो कोई बात नहीं है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं. यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन सॉल्व द इक्वेशन, यू कैन फाइंड द रिजल्ट. सेकेंड केस में मैं लेना चाहता हूँ कि ये कैपिटल M, दिस थिंग इज एट रेस्ट. तो ये अगर रेस्ट में है तो फर्स्ट पिक तो हमारा ये है कि t by 2 equals capital mg होगा. That means t in this case is going to be 2 mg. जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं लिखूँगा. नेक्स्ट स्टार्ट थिंकिंग. तो ये तो रेस्ट में है, तो इसके रेस्ट में होने का क्या मतलब है? मतलब बाकी के भी सब ये इनका क्या होगा? तो ये तो रेस्ट में है. And this time I can only see that this t is not equal to mg, because this is not given. This does not come out of the situations we are observing. So t is definitely 2 mg, and I don't know for sure that t is equal to a small mg. I don't know. तो मैं मान के चलता हूँ कि नहीं ही होगा. वैसे हो भी सकता है, ये स्मॉल m और कैपिटल M के रिलेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक जनरल सिचुएशन में मान के चलता हूँ कि दिस इज़ नॉट द केस. तो दैट मीन्स इफ t इज़ नॉट इक्वल टू ए स्मॉल mg, दैट मीन्स ए स्मॉल m कैन एक्सेलरेट. तो इसके पास एक्सेलरेट करने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो ऊपर एक्सेलरेट करेगा या नीचे एक्सेलरेट करेगा, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. लेट्स मेक ए चॉइस. तो मैंने एक चॉइस मेक किया कि स्मॉल m इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड. मैंने ऐसे ही विल पर मान लिया. तो ये अगर ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो ये तो रेस्ट में है, इसका क्या होगा? आई थिंक कि ये अगर ऊपर एक्सेलरेट करेगा, सपोज दैट किसी टाइम इंटरवल में इसने कुछ डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल कर दिया x, तो ये जो x लेंथ है स्ट्रिंग का, it is going to be released from this side, right hand side. So this pulley is movable now. ये पुली x डिस्टेंस नीचे आएगा, और ये पुली x डिस्टेंस नीचे आने का मतलब ये x और x, that means a total length of 2x it's going to release for 4 mg to move downwards. तो ये 4 mg नीचे की ओर जितनी देर में ये x डिस्टेंस ऊपर एक्सेलरेट करेगा, नहीं सॉरी डिस्प्लेस होगा स्मॉल mg, उतनी देर में ये 4m को 2x डिस्टेंस नीचे आना है. दैट मीन्स
इसका एक्सेलरेशन अगर ये होगा तो इसका एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 2a और दिस थिंग्स आर फ्रॉम प्रीवियस सिचुएशन, सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। तो ये सब तो हो गया, ये सब तो मैंने कंसिडर कर लिया, दैट मीन्स दिस इज एट रेस्ट एंड दिस टू आर मूविंग इन दिस केस। और दोनों के एक्सेलरेशंस के बीच में क्या रिलेशन है वो भी मैंने प्रिडिक्ट कर लिया एक पॉसिबल सिचुएशन में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिख सकता हूँ। सो आई एम गोइंग टू राइट वन एंड फॉर स्मॉल एम इट्स गोइंग टू बी t माइनस t, फॉर स्मॉल एम इट्स गोइंग टू बी t माइनस mg equals ma, and for 4m it's going to be 4mg minus t by 2 equals 4m multiplied by 2a. And now I suggest you do the same. You can put t equals 2mg everywhere and then you find a from both the equation and equate them. इतना आप कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। एंड इस केस में आई होप कि विल फाइंड m equals 16/11m. It might be because I just got, maybe I'm wrong, but I'm not wrong in general, but हो भी सकता है, गलती तो कोई भी कर सकता है, but I think कि the result will come out like m small m equals 16/11m. And so we have solved this question too, but lots of mess has been created, so I am going to remove all of them. And now I am going to freshly think that now 4m is at rest. तो 4m अगर रेस्ट में है तो इसमें टेंशन हमने पिछली बार t लिया था, इसमें t/2 हो गया था और इस पर एक और फोर्स लगेगा नीचे की ओर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो इफ 4m इज एट रेस्ट, आई एम कंसिडरिंग द केस 4m एट रेस्ट। तो 4m अगर रेस्ट में है दैट मीन्स आई कैन ऑलवेज राइट कि t/2 इक्वल्स 4mg एंड दिस टाइम आई गॉट t इक्वल्स 8mg। इट्स अ ग्रेट वैल्यू, t इक्वल्स 8mg। और ये तो पिक है, इमीडिएट पिक है हमारा। नाउ वी वांट टू थिंक। तो थिंक करने के लिए हमें क्या सोचना चाहिए, इस पर एक और फोर्स लगेगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में तो फोर्सेस ही थिंक करवाते हैं। इस पर t/2 टेंशन, इसका t/2 है तो t/2 लगेगा एंड सिंस इट इज़ नॉट शोइंग प्रॉपरली सो आई एम गोइंग टू राइट t/2, इसमें टेंशन है और नीचे की ओर इस पर फोर्स लगेगा mg। तो जाहिर सी बात है कि t का वैल्यू, t/2 का वैल्यू तो 4mg है। सो t/2 का वैल्यू mg से तो बड़ा है। सो डेफिनेटली आई कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और इसका एक्सेलरेशन कितना है, आई कैन फाइंड इट। इस केस में ये अगर रेस्ट में है तो ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा, तो ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है और ये रेस्ट में है। तो इसका क्या मतलब है, ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा और ये जो स्ट्रिंग रिलीज करेगा यहाँ से एक्सेलरेट करते वक्त, उसका क्या होगा। और ये रेस्ट में है, मतलब ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये पुली ऊपर जाएगा और ये पुली ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। और ये अगर x लेंथ रिलीज करता है यहाँ से किसी टाइम इंटरवल में, तो ये पुली को कितना लेंथ ऊपर जाना चाहिए। पुली को तो ऊपर जाने के लिए अपने दोनों तरफ स्ट्रिंग चाहिए, तो ये अगर x लेंथ रिलीज करेगा किसी टाइम इंटरवल में तो पुली x/2 लेंथ ऊपर जाएगा क्योंकि इसको दोनों तरफ स्ट्रिंग चाहिए। तो पुली अगर x/2 लेंथ ऊपर जाएगा तो ये थिंग जो है इसका क्या होगा, इसको तो x/2 ही लेंथ पुली को ऊपर जाना है, तो ये भी x/2 लेंथ नीचे आएगा, ये जैसा कि मुझे दिख रहा है। तो ये x लेंथ ऊपर जाएगा तो ये x/2 लेंथ नीचे आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन अगर ये होगा
तो इसका एक्सेलरेशन a/2 होगा. These things are I'm getting suggested by the situations. So इसका एक्सेलरेशन वैसे होगा कितना, t/2 की जगह मैं इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिख दूँ तो t/2 की जगह मैं 4mg लिखूँगा माइनस mg. That will be mass into acceleration of A. That means 3mg equals ma. So I got the acceleration A equals 3g. Oh, 3g is the acceleration. And इस केस में स्मॉल m का एक्सेलरेशन क्या होगा. तो स्मॉल m के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर यूज करें, टी भी पता है, उसमें कैलकुलेट करना क्या, स्मॉल m का एक्सेलरेशन 3g/2 होगा. इसमें कैलकुलेट भी नहीं करना है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अगर ये होगा तो इसका एक्सेलरेशन a/2 होगा. तो स्मॉल m का एक्सेलरेशन जो होगा वो 3g/2 होगा, a/2. एंड दैट इज unacceptable. This is not possible. मगर हम भी इसी planet पर रहते हैं. We share the same planet and we know if force is acting upward, tension, और नीचे की ओर सिर्फ force of gravity है, वो अगर ब्रेक भी हो जाए ऊपर वाला टेंशन तो हम g से ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जा नहीं सकते. दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज आवर लिमिट. एंड नो अदर फोर्सेस आर एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो वी कैन नॉट गो फर्दर, वी कैन नॉट मूव विथ एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल. This is unacceptable. This is unrealistic. Otherwise, you can move further and you can find out that in this case, I am sure, a small m by capital M, and you will get a negative value because unacceptable चीज़ें होने का मतलब यही आएगा. Though I can do it, but I won't do it because I know for sure. And 4m cannot be stationary. This is the situation. And thank you for watching.